Hello everyone, I hope you're doing absolutely well. My name is Gautam and welcome back to the channel. So I'll give a brief introduction about myself. My name is Gautam. I'm a qualified chartered accountant and a CFA Level 3 candidate. I did my articleship with KPMG in its statutory audit department, and then later I pivoted into due diligence and forensics. Yes, so I've always had this inclination towards academics, thus this channel. So if you want to know more about this channel, what can you expect? So there would be this video coming up. I've pinned it even in the description below. Please do have a view. What can you expect from the channel? How all resources can you leverage and utilize so that you can very strategically approach the CFA level 1 exams, level 2 exams or the level 3 exams, whatever you're sitting for, and you can make maximum utilization of it. है ना? So sir, आज का टॉपिक क्या है? So today we are doing a capsule revision. What is capsule revision? So topics that have very high testability, and which have very high testability and a very high probability of coming in the exams. What do? I condense and I concise them so that we are very prepped for the exam. So any question that would be coming from this topic, say for example company analysis that we're doing, which is a very important topic of the equity reading, है ना? So any question that comes, we'll be so prepped कि सर ये question तो हमसे solve हो ही जाएगा. ठीक है? So that is the entire vision behind creating this channel. Prior to this, I've also I have uploaded other capsule revision videos. Do have a look. If you have any feedback, do share it in the comments. I'll be happy to work on them. Because the entire system is being created so that you are able to ace your, है ना? So चलो सर ज़्यादा मत बोलो and let us directly start with the topic at hand. ठीक है सर. So the topic that today we're discussing is company analysis, past and present. So what do you mean by company analysis, past and present? So as a financial analyst, once you clear your CFA level 1, level 2, when you go out for an internship or a job or even post qualification, the first role that usually brokerage houses or investment firms give you are that of research roles. So entry role is usually as that of a research analyst. And for that research analyst, we should know how to write research reports. We should know how to read research reports so that we can give recommendations to our clients basis that reading, basis that synthesis of information. We are able to interpret कि yes, इसका एक positive effect होगा, इसका एक negative effect होगा news का on the share price, and accordingly we can recommend it to our clients or the investors. ठीक है? What is the purpose? The purpose is to help clients or investors to understand a company and make better investment decisions. So when we're doing an analysis, when we are researching a company, what are the most essential components that we should keep in mind? First is we should understand the company's business model, that how does it earn its revenue, what is the business, वो धंधा कैसे करती है, what does it buy, what does it sell, how is it able to create that system, that economics wherein it sustains its profitability. And so understanding the business model, is it an asset light model, is it a very capital intensive model, and is it a service based industry, is it relating to cloud computing, is it relating to manufacturing. So this is very important so that once we know this, आगे के steps बहुत easy हो जाते हैं. आगे के क्या steps होते हैं? The next step is to analyze past financial statements to understand key drivers of revenue, profit and cash flow. Key drivers are what is driving revenue. ये revenue कमा कहाँ से रही है, क्या segments है क्या segments है revenue के, profit ये कहाँ से कमाते हैं, which is the most profitable segment. हो सकता है एक company के 3 segments हो, A, B and C. ए बी एंड सी. वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से कमा पाती है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किससे कमा पाती है, अगर कैश इनफ्लो हो रहा है तो वो कौन कौन से सोर्सेज से हो रहा है, और अगर आउटफ्लो हो रहा है तो कहाँ कहाँ उसके यूज़ केसेस हो रहे हैं. तो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द एंटिटी. ठीक है सर. नेक्स्ट इज रेवेन्यू एनालिसिस. इट कैन बी अ बॉटम अप और अ टॉप डाउन अप्रोच. व्हाट डू मीन बाय बॉटम अप और अ टॉप डाउन अप्रोच? वी नो व्हाट इज रेवेन्यू. बेसिकली रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी. हमने कितनी भी क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स बेचे इनटू द प्राइस विल गिव अस द रेवेन्यू. अब रेवेन्यू कैन बी ऑफ डिफरेंट, रेवेन्यू कैन बी अर्न फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स. से फॉर एग्जांपल अगर एक रिटेलर है, लेट अस टेक अ रिटेलर. ठीक है. अब एक रिटेलर है, इट सेल्स गुड्स
ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। अब ऑफलाइन भी मेट्रो सिटीज़ में इट सेल्स, एंड इट सेल्स इन टीयर 2 सिटीज़ ऑल्सो सर, टीयर 2 सिटीज़। ठीक है। अब नाउ व्हेन वी आर वांटिंग टू अंडरस्टैंड द रेवेन्यू, आइदर देयर इज जस्ट वन थिंग वी डू कि जो मेट्रो सिटी की टोटल सेल्स है प्लस टीयर 2 सिटी की जो सेल्स है प्लस जो ऑनलाइन सेल्स है, उससे पूरा एक समेशन रेवेन्यू मिल जाएगा कि इतना रेवेन्यू इसने कमाया इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ बॉटम अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। व्हाट इज अ टॉप डाउन अप्रोच? टॉप डाउन अप्रोच इज कि पूरे इंडस्ट्री में ही कितना सेल हुआ है ऑफ दैट स्पेसिफिक आर्टिकल। से फॉर एग्जांपल इट इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ठीक है। कंप्यूटर कंपोनेंट्स में वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सीपीयू का मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इंटायर सिस्टम। ठीक है। तो इंडस्ट्री में कैसी सेल्स रही है कंप्यूटर कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स का उसका मार्केट शेयर कितना है। ठीक है। सो इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम टॉप से नीचे जा रहे हैं कि पूरे इंडस्ट्री में क्या था सेल्स, उसके बेसिस पे इसका कितना शेयर है, उसके बेसिस पे इसने कितना कमाया। सो दिस इज अ टॉप डाउन। एंड व्हाट वाज बॉटम अप, कि ये अलग अलग रीजन्स में कितना कितना सेल करती है। वी आर क्यूमुलेटिवली एडिंग इट, दैट इज बॉटम अप। ठीक है। ठीक है सर। दिस इज रेवेन्यू एनालिसिस, वील डिस्कस ईच कॉम्पोनेंट इन वेरी मच डिटेल, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज प्राइसिंग पावर विच डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड competitive strategy। प्राइसिंग पावर मतलब डज द एंटिटी हैव प्राइसिंग पावर, कि वो प्राइसेस के साथ वो मैनिपुलेट कर सकती है। कैन इट इंक्रीज इट्स प्राइसेस, कैन इट रिड्यूस इट्स प्राइसेस, है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइस इज द सिंगल मोस्ट डिटर्मिनेंट दैट अफेक्ट्स रेवेन्यू। क्वांटिटी को चलो आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, बट प्राइस हैज़ अ वेरी बिग इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर ऑल्सो। अगर आपने कल को प्राइस बढ़ा दिया, डिमांड ही कम हो जाएगी, आपका हो सकता है मार्केट शेयर ही इरोड हो जाए। So that is also very important. Next is doing a cost analysis. Cost analysis is कि when now we're doing the business, क्या क्या costs are incurred. Some costs would be variable in nature, जैसे cost of production है, जैसे जैसे sales बढ़ेगी वैसे वैसे हम cost of production बढ़ती रहेगी for every unit. Some costs are fixed in nature, जैसे हमारा rent हो गया, जैसे हमारा utilities का हो गया, जैसे हमारा electricity bill, जो भी ये है costs which are fixed in nature। ठीक है। लास्टली इज अंडरस्टैंडिंग द रिस्क ऑफ द कंपनी, एंड वी कैन अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ द कंपनी बाय अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री। वो किस इंडस्ट्री में प्ले करती है, किस इंडस्ट्री में फॉल करती है। इज इट अ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इज इट हेल्थ केयर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इज इट अ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। तो उसके बेसिस पे वी अंडरस्टैंड द रिस्क दैट आर फेस्ड बाय एन एंटिटी majorly। अब now the next topic comes about risk. What are the risks that are faced by the company? Risks can be of two types: operational risk or financial risk। operational risk is risk of doing operations, बिजनेस करने का रिस्क, जो धंधे का ही रिस्क है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कल को बिजनेस ही नहीं रहेगा, तो दैट रिस्क इज नोन एज ऑपरेशनल रिस्क, की ऑपरेशंस ही सीज हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क इज द रिस्क ऑफ मीटिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। आपको कोई पेमेंट करनी थी बट आपके पास पैसे ही नहीं था, तो आप पेमेंट ही नहीं कर पाए, तो दैट इज फाइनेंशियल रिस्क। What do you mean by operational risk? Operational risk is the risk of doing business. This is also known as business risk. And financial risk, what do you mean by financial risk? It is the risk of meeting financial obligation. एग्जाम्पल, आपको एक इंटरेस्ट पेमेंट करनी, आपको किसी को सैलरी पे करनी थी, आपने वो करी नहीं, तो नाउ दिस इज योर ऑब्लिगेशन विच यू आर नॉट एबल टू डू, दैट इज वाई you are facing financial risk. Now the measures of this is operating leverage and financial leverage. We'll understand. What do we mean by operating leverage? Operating leverage, we understood, is a measure for operational risk. But now what do you mean by operating leverage? Operating leverage is the percentage change in operating income divided by the percentage change in revenue। कि अगर revenue change होता है, उसका कितना इफेक्ट आता है ऑपरेटिंग इनकम पर। ठीक है, वही विच इज़ नोन एज बिजनेस रिस्क, द रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस। कि अगर रिस्क अफेक्ट होता है,
तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे, हमारे इनकम पे क्या इफेक्ट होएगा, दैट इज द रिस्क. क्योंकि एवरी वन हु एवर इज डूइंग बिजनेस वी वांट टू अर्न प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट रन ऑल्सो वी वांट प्रॉफिट. So if this revenue is changed, yeah, is affected, how will it affect our operating income, operating profit, which is known as that is known as operating leverage. So it is percentage change in operating income divided by percentage change in revenue. Okay, sir. Next comes, what is operating income? Operating income is the income that we have earned after deducting all operating expenses. तो भी आपके expenses relating to operations हैं, जैसे यही हमने पढ़ा था, रेंटल एक्सपेंसेस हो गए, सैलरीज के एक्सपेंसेस हो गए, जो कॉम्पनसेशन आप पे करते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को, वो वाले एक्सपेंसेस हो गए, जो सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, जो ओवरहेड वाले एक्सपेंसेस हो गए, वो सब जब आपने पे ऑफ कर दिया है, जो इनकम रह जाती है, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग इनकम. So one is sales. One, when we minus the cost of production, we get to the gross profit. अब gross profit से जब भी हम operating expenses subtract करेंगे, जो rent, utilities, compensation, salaries, हम जो भी पे करते हैं staff welfare के लिए, जो भी हम पे करते हैं, operations के लिए कोई भी expense जब हम पे करते हैं, उसके बाद जो रह जाता है, that is known as operating profit. Operating profit is also known as EBIT. What do we mean by EBIT? EBIT का full form is earnings before interest and tax. Interest and tax. क्यों? क्योंकि this is the earnings before deduction of interest. हमने अभी interest deduct नहीं किया और tax भी deduct नहीं किया है. हमने सिर्फ अपना operations से जितना profit हम generate कर सकते थे, हमने वो देखा है. ठीक है सर. अब now when we sit for research reports, when you will also make research reports, when you will read research reports, so there are different types of reports. First is an initiating coverage report. What is it? It is a detailed report that is used for new security coverage. ये reports वो बनाते हैं when you want to suggest a new security to your investors, to your clients, जो आपने पहले नहीं किया था. Then comes subsequent reports which are updates after new results. तो जैसे quarterly results are updated and they are posted on the exchange या एक they come out in the news, तो उसके basis पर assimilating all that data, synthesizing all that data, उसके बाद when you give a report to your investors or to your clients, that is known as a subsequent report. Subsequent reports are less have lesser amount of details in it, क्योंकि आपने बहुत सारी details पहली initiating report में दी. Then comes internal report. Internal reports are short reports which are used for internal audience. जैसे फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है, जैसे एक बैंक हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, उसका अलग अलग डिविजन हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन हो गया, कॉर्पोरेट बैंकिंग का हो गया, रिटेल बैंकिंग का हो गया. इन इंटरनली इफ दे वांट टू टॉक अबाउट अ सिक्योरिटी, दे आर डिस्कसिंग अबाउट द अप और डाउन, जो भी उसका मूवमेंट होएगा, इम्पैक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन दैट सिक्योरिटी, तो ऐसी इंटरनल रिपोर्ट जनरेट कर देंगे विच वुड बी वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्प, टू द पॉइंट, जहाँ पे सिक्योरिटी एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्योंकि they know they are following that security, they are in the same entity. So ये they'll not beat about the bush, they'll be short and very crisp, जहाँ पे they will just give the information that they are intending to deliver. ठीक है. अब now what is the structure of an initial report? जो हमने initiating coverage पढ़ा था, वो report होती कैसे है? Let us read this. उसके बाद I'll also get you through one of the reports. This is a report on Krishna Institute of Medical Sciences, which is a healthcare entity that has many hospitals in southern India. Telangana में, Andhra Pradesh में, it has many hospitals. So we'll also go across this report एक बारी, but just let us understand what is the structure of the entire report. ठीक है सर. So structure of an initial report. First is the front matter. What do you mean by front matter? Front matter में details are about the issuer details. हम किस entity के बारे में बात कर रहे हैं, कौन research report लिख रहा है, what is your recommendation, should you buy the security or should you sell the security, if there are any other disclosures to be made. फिर आता है recommendation. इसी में recommendation भी होती है कि should you buy the security, if you have already held the security, should you hold it or should you dispose it of, या should you sell the security. And when you give these recommendations कि either buy or hold or sell the security, you should substantiate it with reasons कि क्यों कर रहे हैं. ठीक है. Then comes company description, where you describe the business model and the strategy of the entity, जो हमने ऊपर पढ़ा था.
कि बिफोर राइटिंग और रीडिंग अ रिसर्च रिपोर्ट वील हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द बिजनेस ऑफ द एंटिटी इज। तो हम वही यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, बिजनेस मॉडल एंड द स्ट्रैटेजी। फिर आता है इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड पोजिशनिंग। जो भी एंटिटी है वो किस इंडस्ट्री में फॉल करती है, पूरी इंडस्ट्री का मार्केट साइज कितना है, उस मार्केट साइज का कितना शेयर दिस एंटिटी होल्ड्स, तो वो सारा हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज़ द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, डज इट फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन, इज़ द कंपटीशन वेरी फियर्स या वेरी फ्रैगमेंटेड, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बस कुछ बड़े प्लेयर से ज़्यादा नहीं है। तो दैट इज़ ऑल एक्सप्लेन्ड। फिर आता है द मेन फाइनेंशियल एनालिसिस, वेयर वी ब्रेक डाउन रेवेन्यू, वेयर वी ब्रेक डाउन कॉस्ट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोज की, वो पैसा कहाँ कहाँ से जनरेट करते हैं, कहाँ कहाँ से यूज़ कर, कहाँ कहाँ पे यूज़ करता है। ठीक है। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन पे हम वी गेट टू द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी कि इसका शुड बी प्राइस क्या होना चाहिए, कि मार्केट में तो हो सकता है ट्रेड कर रहा हो 500 पे, बट इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है ये सिर्फ 200 की है। तो देन वी कम टू द वैल्यूएशन पार्ट। There can be some ESG factors. ESG as a concept is very trending right now in finance, which is about investing very responsibly. उसमें क्या होता है ESG? ESG stands for environmental, social and governance. So where you invest, you should invest in an entity which is sustainable environmentally, socially, which has very good governance mechanisms in place. So this is very important and very trending in the finance sector as of now. तो इसमें वी डिस्कस, वी गिव डिटेल्स अबाउट द सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज़ द ओनरशिप ऑफ द एंटिटी, मैनेजमेंट कैसा है ऑफ द एंटायर एंटिटी, एंड लास्टली रिस्क्स, व्हाट आर द की डाउनसाइड एंड द अपसाइड रिस्क्स, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द रिस्क्स दैट आर फेस्ड बाय द एंटिटी, है ना। दिस वाज द स्ट्रक्चर। एंड इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सिक्वेंट रिपोर्ट। सब्सिक्वेंट रिपोर्ट पहले करना है या पहले हम पढ़ लेते हैं, रिपोर्ट पढ़ लेते हैं पहले, पहले हम इनिशियल कवरेज रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। इनिशियल कवरेज रिपोर्ट, this is Krishna Institute of Medical Sciences Limited. This was published on 17 January 2022. It is available public domain में, you can view this, इस website पे you can go screener.com पे, you get all the reports, all research reports, and you get even more information how you can research about an entity, है ना। So do visit it in your time. You will really be blown away by all the details that it provides. ना? So it is very nice. Do visit. ठीक है। फिर आता है अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटिटी। तो हमने एंटिटी इशूअर का नाम बताया, किस इंडस्ट्री में वो फॉल करता है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन बाई इन द बैंड ऑफ दिस, की इफ इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 1438 टू 1448 ओनली देन बाय। ठीक है। व्हाट इज़ द बेस केस फेयर वैल्यू, इतना होना चाहिए, इन वेरी फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस इसका प्राइस ये हो सकता है। ठीक है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर इज, दे हैव गिवन अ ब्रीफ ऑफ कंपनी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, कृष्ण इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज इज दिस लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हेल्थ ग्रुप इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, नंबर ऑफ पेशेंट्स इट इज़ ट्रीटेड। ठीक है। देन इट टॉक्स अबाउट इट्स एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, क्योंकि इट इज़ ऑब्वियसली इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इट हैज़ हॉस्पिटल्स, तो कितने पेशेंट्स आते हैं, कितने पेशेंट्स जाते हैं ऑन एन एवरेज, जो बेड होता है, हाउ मच रेवेन्यू डज दैट, हाउ मच रेवेन्यू contributes to the overall consolidated revenue of the group. ठीक है। देन देव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, कि देर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट given its clinical expertise, diversified specialities, offerings and continuous improvement in patient management and discharge processes, है ना। फिर आता है वैल्यूएशन। हमने ऊपर पढ़ा था कि इट ऑल्सो गिव्स अ वैल्यूएशन अबाउट शुड यू बाय, शुड यू सेल और शुड यू जस्ट होल्ड। व्हाट कैन बी द रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशन के आइदर यू कैन बाय द सिक्योरिटी, और यू कैन होल्ड द सिक्योरिटी, और यू कैन सेल द सिक्योरिटी। ठीक है। देन वो थोड़ा ये फाइनेंशियल्स में चले जाता है कि व्हाट इज़ द financials, it is reporting healthy financials with revenue to EBITDA to PAT, इन सबका CAGR, what is the compounded annual growth rate, है ना। एंड देन इट गिव्स इट्स रिकमेंडेशन कि वी थिंक द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज़ 1587, 1500 के आसपास है, एंड द बुल केस वैल्यू इज 1700 ओवर द नेक्स्ट 2 quarters। तो उसके बेसिस पे दे आर सजेस्टिंग, दे आर गिविंग दिस रिकमेंडेशन टू देयर क्लाइंट्स कि इफ़ यू वांट टू बाय, दिस इज़ द प्राइस रेंज, इसमें आपको बाय कर लेना चाहिए, एंड दिस इज़ द टाइम होराइजन कि 2 quarters के अंदर अंदर देख लेना, अगर ये जंप होता है तो बाय करना, वरना मत बाय करना।
ठीक है। एंड देन दे हैव गिवन रीजंस बिजनेस मॉडल के बारे में कि व्हाट इज़ इट्स मार्केट पोजीशन इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है। फिर आगे अफोर्डेबल प्राइसिंग टूल टू सपोर्ट ग्रोथ, हाउ इज़ इट फोकस्ड ऑन ग्रोथ, कि किम्स इज़ फोकस्ड टू ऑफर क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइसेस इन देयर हॉस्पिटल्स बोथ इन टियर 1 एंड टियर 2 3 मार्केट्स में। ठीक है। अबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन हाई क्वालिटी डॉक्टर्स एंड डॉक्टर पार्टिसिपेशन मॉडल। तो इट इज़ गोइंग मोर ग्रैन्युलर, मोर डिटेल्स में वो जा रहा है टू टेल द क्लाइंट और द इन्वेस्टर कि वाई शुड यू इन्वेस्ट, वाई शुड यू होल्ड, वाई शुड यू सेल द सिक्योरिटी। ठीक है। फोकस ऑन इम्प्रूविंग रियलाइजेशंस, ये सब आता है इसमें। डिसिप्लिन इनऑर्गेनिक ग्रोथ, तो इट हैज़ मे बी इट वुड हैव ग्रोन थ्रू अ लॉट ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज वेर इन यू grow through mergers and acquisition, not organically, but by acquiring or merging with other entities. जैसे इसमें लिखा हुआ है, it acquired hospital Angol in AP, which is a 350 bed specialty hospital founded by local doctors through a slump sale. है ना। What is its expansion strategy? Consolidating the position in existing markets and strategically increasing presence in adjacent markets. ठीक है सर। रोबस्ट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमने ऊपर पढ़ा था कि इट ऑल्सो गिव्स अ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब एक एक करके वो ये भी क्लोज करेगा कि हाउ फाइनेंशियली इट इज़ वेरी गुड। देखो रेवेन्यू का ट्रेंड दे दिया है, मार्जिन का ट्रेंड दे दिया कि हाउ इज़ इट, हाउ उसके मार्जिन कैसे हैं ओवर टाइम, इंडस्ट्री के क्या इनसाइट्स है और क्या ट्रिगर्स, ओवरऑल इंडस्ट्री का क्या साइज़ है, उसका कितना शेयर किम्स होल्ड्स, इसके क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, जोग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क, हाई रिलायंस ऑन अ सिंगल फैसिलिटी, हाई कंपटीशन। ठीक है। डिले इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, रिटेंशन ऑफ डॉक्टर्स एंड प्राइस रेगुलेशन, क्योंकि इट कम्स अंडर अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री विच इज़ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर कैन नॉट बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस रेगुलेशन इज ऑल्सो डन बाय द गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन। ठीक है सर। अब कहाँ कहाँ पे है, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। तो यू कैन रीड सच रिपोर्ट्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द रिपोर्ट। दिस इज एन इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट, कवरेज रिपोर्ट इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट। इसलिए इफ यू विल सी एवरीथिंग इज वेरी वेरी डिटेल्ड आउट, एवरीथिंग इज वेरी डिटेल्ड अबाउट द कंपनी, about the industry, about its financials, about its recommendation, है ना। तो एवरीथिंग इज वेरी डिटेल ओरिएंटेड ओवर है बिकॉज यू आर इंट्रोड्यूसिंग द सिक्योरिटी टू योर इन्वेस्टर्स, टू योर क्लाइंट्स। ठीक है सर। तो ये है किसका रिपोर्ट, तो आई थिंक एच डी एफ सी हैड कम आउट विद द रिपोर्ट। एच डी एफ सी, हाँ सी। तो एच डी एफ सी सिक्योरिटीज हैड कम आउट विद दिस रिपोर्ट, है ना। तो एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ के जो भी क्लाइंट्स होंगे, हो सकता है रिटेल हो सकता है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हो, उसको हो सकता है वो ये बता रहे हो कि दिस इज़ अ prospective security that you can include in your basket of securities or portfolio of security. That is why it is very detail oriented. ठीक है सर। ऊपर चलते हैं। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सिक्वेंट रिपोर्ट। सब्सिक्वेंट रिपोर्ट में कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर है। फ्रंट मैटर कि हु इज़ द एनालिस्ट, एनालिस्ट का नाम क्या है, इशूअर का नाम क्या है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन। नाउ दिस रिकमेंडेशन वुड बी बेस्ड ऑन अपडेट्स एज वेल एज रीजंस, व्हाई इज इट बीइंग बॉट, व्हाई इज इट बीइंग हेल्ड, व्हाई इज इट बीइंग सोल्ड। फिर आता है द नेम सब्सिक्वेंट रिपोर्ट इज बिकॉज न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू लाइट। तो न्यू इन्फॉर्मेशन एनालिसिस, कंपेयर द एक्चुअल विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। हमने पहले एक्सपेक्ट किया था, व्हाट इज़ द एक्चुअल, कोई डिफरेंस है, कोई वेरिएंस है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम, है ना। एंड देन व्हाट इज़ द रिवाइज्ड वैल्यूएशन, एंड लास्टली द रिस्क्स दैट आर फेस्ड बाय द एंटिटी इन लाइट्स ऑफ रिसेंट इवेंट्स। ठीक है सर। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। if you go down, इसमें there is also a subsequent report of kims as well, of kims only I kept, ताकि एक कंसिस्टेंसी हो। तो दिस इज़ एक ब्रोकरेज फर्म है जियोजेट, जिसने किम्स के बारे में रिपोर्ट दी थी एंड दिस वाज ऑन 15 नवंबर 2023 आफ्टर इट्स Q2 के रिजल्ट्स। ठीक है। तो नाउ इन लाइट ऑफ रीसेंट इवेंट्स ये सारा नाउ दे हैव अपडेटेड स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन टू ड्राइव फ्यूचर ग्रोथ, ऑक्यूपेंसी क्या है और ऑपरेशनल बेड्स की क्या वॉल्यूम की ग्रोथ रही है, गेम्स के अब क्या एक्सपेंशन प्लान्स है,
इसके क्वार्टर के क्या हाइलाइट्स रहे हैं, Q2 के जो क्वार्टर में उसके रिजल्ट्स हैं उसके क्या हाइलाइट्स रहे हैं, वैल्यूएशन, इज देयर एनी अपडेट इन वैल्यूएशन, है ना। ये कंसोलिडेटेड P&L दे दिया है उन्होंने, ठीक है। सो दिस इज अ मच कंसाइज एंड सिंथेसाइज्ड रिपोर्ट। पहले इफ यू सी जो HDFC वाला रिपोर्ट था दैट वाज स्पैनिंग ऑलमोस्ट अक्रॉस, इट स्टार्टेड फ्रॉम पेज 9 एंड इट वेंट ऑन टू पेज 28, 27 ले लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 18 पेजेस की थी वो रिपोर्ट, एंड दिस इज जस्ट 4 पेजेस। सो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट इज मच स्मॉलर एंड इन अ वेरी कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है सर। So this was the chapter that I wanted to share, but before this let us close with some questions ताकि at least we're confident कि yes this topic is in our hands, ठीक है। So let us start with the first question. Last year a retailer of sports equipment earned GBP 600, so 600 million it earned in revenue. The management estimated that its market share was 12%. Based on the management's estimate, the market size for the sports equipment retail in this geography last year was closest to. तो अच्छा, इसमें हमारे पास हमारा मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर वॉज 12% एंड कितना था हमारे पास 600 million। ओवरऑल दे आर वांटिंग टू अंडरस्टैंड ओवरऑल मार्केट साइज क्या है। तो ओवरऑल मार्केट साइज तो इज़ वेरी सिंपल, 600/12% कर लेंगे, है ना। तो 600/12% इज़ 5000। तो टोटल मार्केट जो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज़ ऑफ 5000, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, ये 5000, ठीक है सर। वाई इसमें आंसर्स में गलत क्यों, दिस इज़ बी और सी, एक मिनट। 600/12% इज़ 600/12% इज़ 5000। तो सी इज़ करेक्ट, 5000 होना चाहिए, तो इट शुड नॉट बी सी, इट शुड बी बी, बी इज़ करेक्ट, ठीक है सर। फिर आता है अ स्पोर्ट्स अपैरल कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू लाइन ऑफ परफॉर्मेंस शूज, ठीक है सर। लॉन्च अ न्यू लाइन ऑफ परफॉर्मेंस शूज, द एवरेज सेलिंग प्राइस वाज 50 पर पेयर। तो प्राइस इज 50 GBP, ठीक है। एंड इट सोल्ड 800 पेयर्स, तो 8 लाख इट सोल्ड ना, 8 लाख पेयर्स। तो हम रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे इसका। This year, analyst forecasts the sales of 1.2 million pairs with an increase of average selling price of 5%, ठीक है। तो पहले 50 था, अब इंक्रीज हो जाएगा बाय 5%, और अब जो सेल्स है इट इज़ 1.2 मिलियन, ठीक है। तो रेवेन्यू कितना आएगा, रेवेन्यू विल कैलकुलेट द एनालिस्ट फोरकास्ट फॉर द नेट सेल्स ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू पूछ रहे हैं इसमें, ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू। तो दोनों का रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 50 इंटू 8 lakhs इज़ 40 million, 40 million है ना। एंड 50 प्लस 5% इज़ 52.5 इंटू 1.2 million, 1.21 million इज़ 63 million। So what has been the increase? So 63 million divided by 40 million minus 1 is 57.5, which is almost 58, ये 57, 58, ठीक है। 40 था, 63 हो गया, तो ग्रोथ कितना हुआ है फ्रॉम 40 to 63 ऑफ 57.5, ठीक है। अ कंपनीज मैनेजमेंट में चूज नॉट टू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू एग्जाम, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स द इंस्टीट्यूट टेंड्स टू प्ले अ लॉट विद नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है सर। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अ कंपनी में चूज नॉट टू यूज फाइनेंशियल लेवरेज बिकॉज the company has an investment grade rating, a high degree of operational leverage, a low net debt to EBITDA ratio. Financial leverage is what? Financial leverage is basically we're taking on more debt, है ना,
बट वी शुड नॉट टेक मोर डेट या वी शुड नॉट टेक मोर फाइनेंशियल लेवरेज जब ऑलरेडी वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज। एक अगर ऑपरेशनल लेवरेज ही बहुत हो रहा है हमें, ऑपरेशनल लेवरेज क्या है? रिस्क ऑफ ऑपरेशंस। अगर रिस्क ऑफ ऑपरेशंस ही ज़्यादा है, उसके बाद हम और डेट ले रहे हैं तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी मीट नहीं कर पाएंगे, है ना? इसलिए वी शुड नॉट गो फॉर फाइनेंशियल लेवरेज इफ वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है सर। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज़ वेरी इजी, दिस इज़ बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग लेवरेज? Operating leverage is percentage change in EBIT, operating profit, divided by percentage change in revenue। ठीक है सर। तो इसमें रेवेन्यू वी नो, वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, है ना? डू वी नो द EBIT? EBIT is operating income, which is revenue minus cost of goods sold minus SGA, selling and general administrative expenses, minus research and development cost माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ तक वी विल सब्ट्रैक्ट, वी विल नॉट टेक इंटरेस्ट क्योंकि इंटरेस्ट इज फाइनेंस एक्सपेंस, है ना? तो हम यहाँ तक लेंगे, EBIT मिल जाएगा हमें, एंड देन यहाँ तक का भी हम ले लेंगे, EBIT हमें यहाँ तक का भी मिल जाएगा। विल कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। ठीक है, सो दिस इस परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय दिस परसेंटेज चेंज विल गिव अस ऑपरेटिंग लेवरेज। देख लेते एक बारी इन्होंने क्या किया है। 97 -4850 -993 -1700 491 क्या है? 491 इज़ अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, 491 भी डिडक्ट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये आ गया। हम एक परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लेंगे एंड वी कैन गेट द ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है सर। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देन वील क्लोज। It talks about A Fashions Limited is a fictitious company that designs, manufactures, and sells clothing and accessories. Identify whether each expense line below from AF Limited last annual income statement is most likely a fixed or variable cost. We should identify, is it a variable cost or a fixed cost. What is this? Basically, we are doing is cost analysis. So amortization of acquired intangible assets, is it fixed or is it variable in nature? आप बताओ, इज इट फिक्स्ड कि होएगा ही होएगा या इज इट वेरिएबल इन नेचर? होएगा तभी होएगा, अगर नहीं है हमारे पास तो नहीं होगा, तो इट इज़ वेरिएबल इन नेचर। ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इज इट फिक्स्ड और वेरिएबल इन नेचर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज इट फिक्स्ड और वेरिएबल इन नेचर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज तो पूरा पूरा वेरिएबल इन नेचर। GA, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इज इट फिक्स्ड और वेरिएबल इन नेचर? दिस इज यूजुअली फिक्स्ड, आई फील ये फिक्स्ड होता है यूजुअली एक्सपेंसेस। सेल्स कमीशन, दिस इज वेरिएबल इन नेचर, है ना? अब क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, इज दिस वेरिएबल या फिक्स्ड? दिस डिपेंड्स ऑन वन द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट, कि आपके अग्रीमेंट की टर्म्स कैसे हैं, कि डू यू पे अ फिक्स्ड परसेंटेज और इज इट अ फ्लोटिंग परसेंटेज, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो वी कैन व्यू दिस उसके बेसिस पे। amortization इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस, क्या दिया इन्होंने एक्सप्लेनेशन? इट इज़ generally does not change with sales volume as definitely intangible assets are amortized। अच्छा, ओके, ठीक है। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ फिक्स्ड एक्सपेंस एंड नॉट अ वेरिएबल एक्सपेंस, माय बैड। ठीक है सर, सो दिस इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस। सिमिलरली इंटरेस्ट इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय द लेवल ऑफ डेट एंड नॉट बाय सेल्स वॉल्यूम। अच्छा, इसमें जो फिक्स या वेरिएबल दे आर टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, सो दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड, दिस इज वेरिएबल इन नेचर, दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज वेरिएबल इन नेचर। ठीक है सर। तो दिस वाज अ क्विक रिकैप ऑफ द इंटायर चैप्टर ऑफ कंपनी एनालिसिस। हम एक कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, हाउ कैन वी गिव रिकमेंडेशंस। ठीक है, आई होप यू गॉट वैल्यू आउट ऑफ दिस। इन केस यू गॉट लीविंग द लास्ट क्वेश्चन, पता नहीं यार वो गलत कैसे हो गया। ठीक है, सो लिविंग द लास्ट क्वेश्चन, इफ यू गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ इट, आई होप यू गॉट, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट अक्रॉस विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, so that they are also able to take the right decision at the right time, है ना? And it goes a long way, है ना, when the right guidance is given at the right time, है ना? Do subscribe, all my social media handles are given down in the description,
So you can join the Telegram channel. All updates, all informational content about the exams, about strategies, and are all posted over there. You can follow me on Instagram. You can connect with me on LinkedIn. And yes, I hope you had a nice time. Uh, Thank you. We'll meet for another capsule. Bye bye.